Okay, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good children. morning, ma'am. Yes, beta. We have to start with the new chapter today, right, children? Okay, ma'am. That is the Central Islamic lands. Okay, children. Yes, ma'am. But one thing is also there कि I have taken the attendance in the beginning as well as I am going to take it at the end also. ठीक है? So be present. ये नहीं हो कि थोड़ा सा ज्वाइन करा और फिर आप छोड़ के चले जाएं. Like, right? Okay, ma'am. Okay, let us first have the introduction. ठीक है? Okay. In the 21st century, that is in the present time, okay, there are over 1 billion Muslims living in all parts of the world, and they belong to different nations. They spoke different languages, as well as their dressing style is also different. The reason being, they became Muslims in the different circumstances, and their ways of adopting this religion is also different to each other. Okay, but still we will say कि जो इस्लामिक कम्युनिटी है ना, ये अब एक मोर यूनिफाइड पास में है, and we can understand it by studying the period 1400 years ago in the Arabian Peninsula. Okay, and in this chapter we are going to study the rise of Islam and how it extended to other territories. Okay, and how was the Islamic society politically, culturally. ठीक है, when we use the term Islamic, है ना, it does not mean it is totally related to religion or a culture. ठीक है, it is the whole way of their living style, their society, and how they were working politically. Okay, there are various sources by which we come to know about this Islamic period. They are chronicles, eyewitness report, archaeological evidences, biographies, Quran, and saying of the Prophet Muhammad. Okay, these are the different ways through which we come to know about this period. And the period which you are going to study in this lesson is between 600 to 1200, right? Wait a minute, children. हाँ, यस बेटा जल्दी बोलिए. बेटा लिंक तो पुराना ही है बेटा, मैंने बोला आप लोगों को 2-3 बार बता. ओके, यू यूज फॉलो दैट, और अगर आपके पास नहीं तो जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स टू गेट. ओके, ओके. Okay, proper histories of Islam began to be written in the 19th century by the university professors in Germany and the Netherlands. Colonial interest in the Middle East and the North Africa encouraged French and the British researchers to study Islam as well. ठीक है? Christian Peets also paid attention towards the history of Islam. ठीक है? And they also produced some good work for this, and which has helped in the reconstructing the history of Islamic period. पर यहाँ पर उनका इंटरेस्ट ये नहीं था कि वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए वो उसके बारे में लिख रहे हैं. रीजन बी दे वर कंपेयरिंग इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, and in this lesson only you will
study about the wars between the Christians and Muslims. They were known as crusades. Okay. Now we'll come to the chapter. Okay. We'll come to the heading 1, that is the rise of the Islam in Arabia. एक मिनट. Okay, children, now you will able to see the screen. Yes, ma'am. Okay. Okay. Prior to Islam, Arabia was quite backward socially, politically, economically, and religiously in the 7th century, and it was dominated by the nomadic tribes. Those are your Bedouins. Okay. And Prophet Muhammad is regarded as one of the greatest personalities in the world history, and he was born at Makkah in 570. Right, children? Now, during 1612 and 32, okay, Prophet Muhammad preached the worship of a single God, Allah, and he made a community of his believers known as उम्मा. ठीक है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे थे वो एक कम्युनिटी में बाउंड हो गए, एंड दीज पीपल वर कॉल्ड एज उम्मा. And Muhammad was an Arab by language and culture and a merchant by profession. ठीक है, because before becoming prophet he was a trader or a merchant. Or around 6th century, Arab culture was largely confined to the Arabian Peninsula, ठीक है, southern Syria and Mesopotamia. ठीक है, इन एरियाज में आपका ये अरेबियन कल्चर फैला हुआ था. Prophet Muhammad belonged to Quraysh tribe of Makkah and controlled the main shrine there, a cube-like structure called Kaaba. ठीक है, in which idols were placed. ठीक है, idols means जो आपकी मूर्तियां वगैरह वो लोग अपना मानते थे. Let us see about this tribal people. Okay, जिनका हमने भी जिक्र किया था कि previously it belongs to the mainly to the tribal people. Arab society, it was divided into the different tribes. Okay, each tribe was led by a chief, and this chief was chosen partly because of his family connections, but mainly on the basis of the wisdom, personal courage, and generosity. The children and someone is waiting for joining. Okay, now you can join. Every tribe has its own god or goddess. Okay, idol of this god and goddess were kept in the shrine and was worshipped by the people. And most of these tribes were nomadic, moving from one place to another place. ठीक है, like me moving from the dry areas to the green areas in the desert in search of the food and fodder for their animals.
A number of tribes were settled in the cities later on, and they practiced trade or agriculture also. Right? Clear beta itna? Now we'll come to the Prophet Muhammad. Okay? As we have seen, he belonged to the Quraysh tribe and practiced culture. His culture was Muslim, and how it he became so much famous that people started following him. Okay, there is one thing more that this Makkah where he took birth was located on the crossroads of a trade route between the Yemen and the Syria. Okay, and it has also increased, thus it has increased the city's importance. The Makkan shrine was a sanctuary where violence was totally forbidden, and the visitors got the full protection. Those people who are coming to this place, जो अपना वहाँ पर हज के लिए आते थे, उन सबको पूरा प्रोटेक्शन मिलता था. ठीक है, नो वायलेंस वाज देयर एट ऑल. Okay, so now you can understand the importance of Makkah of due to the many reasons. It was the birthplace of the Muhammad. ठीक है. Second, the Kaaba. ठीक है, which was a shrine related to the Islam that was also placed there, and it was a crossroads of a trade route which passed through the Yemen and Syria. Okay, and also Makkan shrine where it was there, and at the time of people come to there for Hajj, the violence was totally forbidden, and the whosoever goes there, they got the full protection. Okay? Pilgrimage and the commerce gave the nomadic and settled tribes opportunity to communicate with one another and share their beliefs and customs. अब जब लोग वहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, है ना, कॉमर्स के अपना कॉमर्स एंड ट्रेड के लिए जाते थे, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन होने लगा और ये लोग अपने आइडियाज, अपनी बिलीव्स, है ना, कस्टम्स एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे. Although the polytheistic Arabs were vaguely familiar with the notion of supreme God Allah, ठीक है, वो उससे familiar थे कि वो अल्लाह को मानने वाले थे. ओके, और इस तरीके से उनके इन्फ्लुएंस में जूइश एंड क्रिश्चियन ट्राइब्स जो वहाँ पर रहती थी वो लोग भी आए थे, एंड देयर अटैचमेंट टू आइडल्स एंड श्राइन्स वर मोर इमीडिएट एंड स्ट्रॉन्गर. ठीक है, उस श्राइन से, काबा से, और वहाँ पर जो लोग अपनी ये आइडल्स रखते थे, जिन लोगों को ये वर्शिप करते थे, उनसे इनका एक अलग अटैचमेंट. बेटा क्लियर हुआ इतना? यस चिल्ड्रन, एनी प्रॉब्लम? यस. मैम हाँ जी. मैम अरब्स वर पॉलिथिस्टिक. हाँ, in the beginning they were polytheists. Later on, they started strictly to the this Islam culture only, and they have started even worshipping the idols also, है ना. जैसे हमने भी बताया कि वो different gods and goddesses का अपना वहाँ पर statues रखते थे. बाद में वो सब चीजें भी खत्म हो जाती हैं. ओके, चलिए, now let us move to the next para. About 612, Muhammad declared himself to be the messenger of the God, okay, who had been commanded to preach the Allah alone should be worshipped. ठीक है, and 612 में मोहम्मद एक ने अपने को मैसेंजर ऑफ गॉड कि उनको भगवान ने अर्थ पर भेजा है. ठीक है, लाइक दैट अल्लाह ने उनको अर्थ पर भेजा है, और उन्होंने लोगों से कहा कि अब उनको, जैसे वो डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस को मानते थे, कि दे शुड सिंपली वर्शिप अल्लाह ओनली. ओके, और जो उनका वर्शिप था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट. इट वाज वे हैड वेरी सिंपल रिचुअल्स लाइक डूइंग डेली प्रेयर्स एंड फॉलोइंग सम मॉरल प्रिंसिपल्स, जो हम नॉर्मल एक आइडियल लाइफ में अपना सब लोग फॉलो करना चाहते हैं, लाइक
डिस्ट्रीब्यूटिंग एल्म्स, दान देना है ना, ओके, एंड ऑल्सो एब्सटेनिंग फ्रॉम थेफ्ट, एक्सक्यूज मी, चोरी वगैरह, इससे अपने को रोकना, ये चीजें में इन्वॉल्व ना होना, ओके। Now, Muhammad was to found a community believers bound by a common set of religious beliefs. ठीक है, जैसे हमने बताया था कि उनके फॉलोअर्स की एक कम्युनिटी बन गई थी उम्मा, तो अब वो चाहते थे कि अब ये अपना एक कॉमन बिलीफ और अपना ये जो सेट ऑफ प्रेयर्स है ना, जैसे इन्होंने भी ऊपर डिस्क्राइब करा है, अपना रिलीजियस बिलीफ्स को फॉलो करें। The community would bear witness to existence of the religion before God as well as before the members of the other religious communities. Muhammad's message particularly appealed to those, ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनसे और लोग क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं, व्हाट वाज द रीजन कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। द रीजन भी there were many Makkans, ठीक है, who felt deprived of the gains from trade and religion and were looking for new community identity, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, ट्रेड में वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उनको सोसाइटी में एक कोई अपनी पहचान नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, दे फेल्ट नेग्लेक्टेड। तो ऐसे जो भी लोग थे, दोज पीपल वर इन सच ए कंडीशन, they all accepted the doctrine, this doctrine of Prophet Muhammad, and they were called as Muslims. Okay children, क्यों एकदम से इतने सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? This was the reason. They were promised salvation on the day of judgment, ठीक है, कि वहाँ पर ऊपर जाके उनको salvation मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, and they were also promised कि they will share the resources of the community while on the earth, ठीक है, जो भी resources हैं उन सबको वो लोग अपने आपस में बांट करके शेयर करें, ओके। और जब आप लोग देखते हो ना कि किसी एक चीज को बहुत ज्यादा फेम एंड पॉपुलैरिटी मिलने लगती है, तो देन व्हाट हैपन चिल्ड्रन, दूसरे लोग उनके अगेंस्ट चले जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ओके। द सेम थिंग वाज फेस्ड हियर बाय प्रॉफिट मोहम्मद in 622. Muhammad was forced to migrate with his followers to Medina. क्यों क्यों क्या होने लगा था? The Muslims soon faced considerable opposition from the affluent Makkans who took offense to the rejection of their deities and found the new religion a threat to the status and the prosperity of Makkah. जो लोग वहाँ पर पहले से रह रहे थे और जो उनमें बिलीव नहीं कर रहे थे, उनमें जिनका मोहम्मद प्रॉफिट में फेथ नहीं था, है ना, तो उनको लगने लगा कि जो वो डेटीज को बिलीव करते हैं और ये नया रिलीजन उनकी प्रॉस्पेरिटी को भी हर्ट करेगा, ठीक है, और उनके लिए ये नया रिलीजन एक थ्रेट की तरह काम करेगा, तो दे ऑल स्टार्टेड अपोजिंग दी प्रॉफिट मोहम्मद, एंड इन सच ए सिचुएशन ही हैड टू माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना, ठीक है, वो अपने फॉलोअर्स के साथ मक्का से मदीना चले जाते हैं, एंड मोहम्मद जर्नी फ्रॉम मक्का वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम, ठीक है, जो उनका बर्थ प्लेस था वो भी उनको अब छोड़ के जाना पड़ रहा था, विद द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन द मदीना मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, ठीक है, और इसको हिजरी ईयर या हिजरी एरा भी बोला जाता है, वहां से एक नया मुस्लिम कैलेंडर स्टार्ट होता है विच वॉज बेस्ड ऑन दी मून, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मून पर होता है ना कि प्रथमा द्वितीय तृतीया, और जो दूसरा कैलेंडर है दैट इज बेस्ड ऑन दी सन, ओके, ये लूनर कैलेंडर है और वो आपका सोलर कैलेंडर है, यू कैन से, जो इंग्लिश कैलेंडर है, राइट चिल्ड्रन, क्लियर होगा बेटा इतना कि किस तरीके से इनको मक्का छोड़ करके मदीना जाना पड़ता है? यस, someone has raised the hand, any problem? I could not see the name.
Yes beta, any problem up to this part? Yes beta. Yes Kanishka, any problem? Yes children, am I audible to you? You are not replying. Beta समझ नहीं आया है तो you are most welcome to ask the things, and if you have understood then just say yes or no, whatever you want. Yes children. Yes beta, am I audible? Beta say yes or no. तो बेटा why you are not replying when I am asking whether you are able to understand or not? क्या आप लोग छोड़ के चले जाते हो बीच बीच में? Something like that. So long I am asking whether you are able to understand up to this part or not. बताइए समझ आया या नहीं? Yes Rachit. Yes children, why no response? आ रहा है समझ में? तो बेटा दिस थिंग आप तभी साथ साथ बोल दो ना, तो why I have to waste so much of time in these things, है ना? Okay, we have seen that a new calendar started there and Prophet Muhammad came to Medina. ठीक है, तो अब हमें इन जनरल विल टॉक ऑफ द सम फ्यू ऑफ द थिंग्स कि किसी भी रिलीजन के सर्वाइवल के लिए, है ना, जरूरी है कि उसके पास एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हो, है ना, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने वाले हो, तभी वो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर पाएगी, अपोजिशन उसका इतना ज्यादा ना हो जैसे उन्हें मक्का से छोड़ करके मदीना आना पड़ा. The community has to be consolidated internally and protected from the external dangers. ठीक है, कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको फेथ होना चाहिए and they should be internally strong कि yes, whatever religion they are opting, whatever things they are opting, they have a full faith into it and they all are united, and as well as जो आपके outside factors हैं उन सब से भी उनको protect करके रखना है. ठीक है, कंसोलिडेशन एंड द प्रोटेक्शन रिक्वायर. अगर हमें किसी चीज को कंसोलिडेट करना है, प्रोटेक्शन देना है, तो फॉर दैट वी नीड सम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कोई स्टेट है, किंगडम है, या सम गवर्नमेंट इज देयर. ठीक है, और ये सब चीजें दे मे बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट और दे कैन बी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड और दे कैन बी क्रिएटेड बाय देमसेल्व्स आल्सो. ठीक है, क्लियर बेटा? In Medina, Muhammad created a political order from all three sources. ठीक है, वहां पर एक वो पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट करते हैं इन तीनों चीजों को मिलाकर, विच गेव हिज फॉलोअर्स द प्रोटेक्शन दे नीडेड. उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है, एज वेल एज वहां पर एक सिविल वॉर चल रहा होता है व्हेन दे शिफ्टेड टू मदीना. ओके, and that was also resolved by the Prophet Muhammad. वो सिविल स्ट्राइफ जो होती है, सिविल वॉर उनके बीच में जो सिटी के अंदर चल रहा होता है, उसको भी खत्म कर दिया जाता है, so that people can live in a harmony peacefully with each other. The Ummah was converted into a wider community. ठीक है, अब जो उम्मा था ये एक बड़ी कम्युनिटी में चेंज होता जा रहा था, इन विच पॉलिथिस्ट ज्यूज ऑफ मदीना, ठीक है, वो सब प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप में, पॉलिटिकल लीडरशिप में रह रहे थे. मोहम्मद कंसोलिडेटेड द फेथ फॉर हिज फॉलोअर्स बाय एडिंग एंड रिफाइनिंग रिचुअल्स. ठीक है, अब उन्होंने अपने फेथ में कुछ और नई चीजें ऐड करी. ठीक है, जैसे फास्टिंग एंड कुछ और एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि उनके रिलीजन को और अच्छा बनाए, आइडियल बनाए, एंड दे विल अट्रैक्ट मोर पीपल.
स्ट्राइक का मतलब क्या है? हैं? सिविल इसका स्ट्राइक। सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब कि सिटी के अंदर ही जब ये लोग मदीना आते हैं ना, तो शुरू में सब लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। एक चीज होती है कि आउटसाइड अटैक होता है, एक होता है कि इंटरनली हमारे बीच में अगर कुछ कन्फ्रंटेशन चल रहा है, ठीक है, कुछ फाइट चल रही है, तो दैट इज नोन एज सिविल स्ट्राइफ और सिविल वॉर। ठीक है, दैट वाज देयर, और मोहम्मद प्रॉफिट ने आके इसको भी खत्म कर दिया था। ओके बेटा। ओके। ओके, नाउ उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, पॉलिथिस जो आपके डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस को मानने वाले थे, वो लोग इनके अंडर में आ गए थे। ज्यूज ऑफ मदीना, दे ऑल्सो एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ द मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद कंसोलिडेटेड द, उन्होंने अपने रिलीजन को और ज्यादा रिफाइन कर लिया था बाय एडिंग फ्यू थिंग्स। जैसे हमने बताया फास्टिंग, जैसे लोग रोजा वगैरह रखते हैं ना, ठीक है, रमजान के दिनों में, एंड सम एथिकल प्रिंसिपल्स, सब कुछ मॉरल चीजें और इसमें ऐड कर ली थी। द कम्युनिटी सर्वाइव्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एज वेल एज एल्म्स टैक्स। ठीक है, जो अपना टैक्स होता था उसके ऊपर, एग्रीकल्चर और ट्रेड के ऊपर इनकी कम्युनिटी सर्वाइव कर रही थी। ठीक है, पर उनको लगता था कि दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट। सो इन एडिशन द मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज एक्सपीडिशरी रेड्स ऑन मक्कन कारावेंस एंड नियर बाय ओएसिस। अब उन लोगों ने क्या करना शुरू करा? रेड्स मीन्स एक जो भी वहां से मक्कन कारावांस में लोग निकलते थे ट्रेड के लिए, ठीक है, उनके ऊपर अटैक करना शुरू करा, या जहाँ पर नियर बाय ओएसिस में जहाँ पर आपका एग्रीकल्चर होता था, है ना, वहां पर लोगों के पास पैसा होता था, उन लोगों के ऊपर इन्होंने अपना अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, these raids provoked reactions from the Makkans and caused a breach with the Jews of Medina। और जब ये लोग रेड्स करते हैं तो जो आपके मक्का में ये ज्यूज ऑफ मदीना थे, है ना, इन लोगों को भी ये चीज पसंद नहीं आती और इनका आपस में ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद सीरीज ऑफ बैटल्स वर फॉट एंड मक्का वाज कनक्वर्ड। ठीक है, जहां से उनको निकाला गया था, that area has been conquered by the Prophet Muhammad now। And after having all these things, ठीक है, मोहम्मद्स रेपुटेशन एज ए रिलीजियस प्रीचर, है ना, एंड ए पॉलिटिकल लीडर आपका सब जगह स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड फार एंड वाइड। वो उनको बहुत ज़्यादा फेम एंड पॉपुलैरिटी मिल जाती है कि ही वॉज सच अ रिलीजियस लीडर, ही वॉज सच अ पॉलिटिकल लीडर। राइट चिल्ड्रन। नाउ मोहम्मद इंसिस्टेड ऑन द, अब उन्होंने ये सब चीज़ें उनको इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वो उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है, लोग बाग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, है ना, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, और टैक्स के थ्रू अपनी कम्युनिटी का काम चला रहे थे। एंड अदर रिक्वायरमेंट्स वर मेड बाय अटैकिंग ऑन दीज मक्कन कारावेंस एंड ओएसिस। वहाँ से उनका जो पैसा है उनके पास लूट करके ये सब उनके पास आने लगा। ठीक है, और जब ये पूरी तरह फेमस हो जाते हैं तो अब इनका क्या काम रह जाता है कि ही इंसिस्टेड ऑन द कन्वर्जन, कि जो और कम्युनिटीज हैं उन सबको कन्वर्ट करके इस्लाम फॉलो कराया जाए। ठीक है, राइट चिल्ड्रन, सो दैट उनकी जो कम्युनिटी है उसका साइज बढ़ता चला जाए। ओके, मोहम्मद नाउ इंसिस्टेड ऑन द कन्वर्जन एज द सोल क्राइटेरिया फॉर द मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी, and in the harsh conditions of the desert, the Arabs attached great value to the strength and the solidarity। ठीक है, आपको पता है कि जो आपके डेजर्ट कंडीशंस होती हैं, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू लिव। ठीक है, ऐसे में उन सबको लगता था कि हम जितने भी सब लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहें, और तभी हम मजबूत हो सकते हैं जब हम यूनिफाइड वे में एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो करेंगे। And many communities were impressed by the achievements done by the Prophet Muhammad। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं, इम्प्रेस्ड हो जाती हैं, और उन सब का इम्पैक्ट ये होता है कि मैनी कम्युनिटीज कन्वर्टेड टू इस्लाम। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल नाउ इन इस्लाम हैज बीन इंक्रीज्ड।
and especially this Bedouin tribes, जिसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था ना कि they were moving from place to place in search of the food and fodder for their animals. Okay. Muhammad's alliance began to spread until they embraced the whole of Arabia. और वो अपना ये अलायंस तब तक बढ़ाते रहे, अपना स्प्रेड तब तक बढ़ाते रहे जब तक कि ऑलमोस्ट होल ऑफ द अरेबिया आपका इस्लाम को फॉलो नहीं करने लगे. मदीना बिकेम नाउ, मदीना भी उनके अंडर में था, मक्का भी उनके अंडर में था. ठीक है. मदीना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल. ठीक है, जहां से वो अपनी सब चीजें कैरी कर रहे थे, ट्रेड कैरी करा जाता था एंड ऑल दीज. एंड मक्का बिकेम द रिलीजियस सेंटर बिकॉज काबा वाज सिचुएटेड देयर. ठीक है. जो उनका हज लोग जाते हैं मुस्लिम, तो वहां पर ही जाते हैं मक्का में. उनका एक बहुत पिलग्रिमेज सेंटर माना जाता है उन लोगों का, बहुत बड़ा. ठीक है. मदीना बिकेम द ओके द काबा वॉज क्लींस्ड ऑफ आइडल्स. अब वहां पर जो पहले हमने बताया था ना कि बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की स्टैचूज वगैरह ये सब रखी रहती थी, अब उन सबको क्लीन कर दिया गया बिकॉज दिस इज द कस्टम इन पीपल फॉलोइंग द इस्लाम कि जब वो लोग प्रेयर करते हैं दे हैड टू फेस द काबा. जो आप देखते हो ना मस्जिद वगैरह है, उसकी जो लोकेशन है वो इस तरीके से होती है कि जब वो लोग अपना प्रेयर कंडक्ट करें, अपनी नमाज पढ़ें, तो उस समय उनका फेस काबा की तरफ होना चाहिए. ओके. एंड इन ए शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेस Muhammad was able to unite a large part of Arabia under a new faith community and the state. And the early Islamic polity, however, remained as a federation of Arab tribes and clans for a long time. Okay, children. Now, through the map, also, we'll try to understand. Okay. Okay, this is the picture of Kaaba, है ना? आपको दिख रहा है ना एक स्क्वायर बड़ा सा पिलर खड़ा हुआ है ना? This is your Kaaba. पिक्चर बहुत क्लियर नहीं आ रही है. चलिए, बट एटलीस्ट यू कैन सी द ग्रीन पार्ट. कैन यू सी चिल्ड्रन? This is the map and this is the green part and some of the green part is here. Can you make out this, children? Yes, children. Sure, ma'am. And this Ma'am. is the area under Islam, ठीक है, under the Prophet Muhammad. Later on, it has expanded again after the death of the Muhammad, Prophet Muhammad. जो पूरा ये pink part दे रखा है, it also came under the अरेबियन रूल. ठीक है. ये भी आपका पूरा इस्लाम का पार्ट बन जाता है. बट टिल द मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद वाज अलाइव, ये सारा जो आपका ग्रीन पार्ट है ये आपका हिजाज है इसमें. ठीक है. दिस इज योर हिजाज. पिक्चर क्लियर नहीं आ पाई, सॉरी चिल्ड्रन. दिस इज हिजाज, दिस इज अरेबिया, है ना. एंड ये यमन है. ओके. ये सारे नेम्स हमने पढ़े हैं ना, यमन, अरेबिया एंड अराउंड हियर दिस इज मदीना एंड जस्ट बॉटम टू दिस इज मक्का. यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मदीना है आपका और यहाँ पर मक्का है. ठीक है. तो दे आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज. ठीक है. क्लियर बेटा? Ma'am, was Arabia not under someone's control? नाउ No, ma'am. In the ancient time when Prophet was there, when he was trying to spread it, हाँ, इट वॉज was there अंडर द no कंट्रोल ruler? ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ओनली बेटा. ठीक है. This was under his control and later on after his death there were 4 caliphates. ठीक है. एक अलग सिस्टम आपका स्टार्ट होता है, कैलिफेट सिस्टम. अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद दिस. The caliphate expansion, civil wars and the sect formation. Okay. After that
10 years of his rule you can say, है ना. 622 में he has declared himself as मैसेंजर ऑफ द गॉड. ठीक है. उसके बाद 10 इयर्स का टाइम ही उनको मुश्किल से मिला था, जिसमें उन्होंने सब चीज़ों को स्टार्ट किया है ना. नया एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया है, राइट. ठीक है. उसके बाद जो लोगों को वहाँ से उन्होंने उनको हटा दिया था मक्का से. देन ही हैज शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस मदीना. वहाँ का करके अपने एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं. एंड देन ही ट्राई टू सी द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी. उनके रिलीजन को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट कर हो सकें. एंड जस्ट टू मेक देम थिंग्स अवेलेबल. ठीक है. वो अपनी रेड्स करते हैं डिफरेंट ये मक्कन कारावंस के ऊपर. ठीक है. और जो है डिफरेंट पीपल के ऊपर, जिससे कि उनको और पैसा मिल सके, उनकी कम्युनिटी के लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना फील हो. एंड आफ्टर कंसोलिडेटिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ही हैज स्टार्टेड द स्प्रेड ऑफ द इस्लाम टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, जिससे कि उनकी कम्युनिटी का साइज बढ़ता हो चला जाए. तो 10 इयर्स में जो कि ही स्टार्टेड विद द जीरो यू कैन से, है ना. जब उन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं था, है. एंड कंट्रोलिंग सच अ लार्ज एरिया, और केवल 10 इयर्स का टाइम ही गॉट. तो इट वाज नॉट अ स्मॉलर थिंग और अ स्मॉलर गेन फॉर हिम. ओके. एटलीस्ट उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से पूरा रिलीजन का को सेटअप या एस्टैब्लिश ही किया है उस समय. ओके बेटा. परमीत, यू आर ज्वाइनिंग सो लेट. मैं ऐसे बच्चों की अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी फिर. राइट चिल्ड्रन. एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पार्ट बेटा, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. ओके. Ma'am, in the हाँ. first place, we have read that in Islam, the theft was considered as a bad idea. And in the second part, we have studied that they were raiding different regions. हाँ बेटा, अब उनका कल्चर है, वो उस चीज को गलत नहीं मानते हैं. क्यों रेड कर रहे हैं? सो दैट दे ही कैन मेड थिंग्स अवेलेबल टू हिज कम्युनिटी. ओके. हर किसी का आज भी आप देख लो कि जो इस्लामिक पीपल हैं, है ना, उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है. द थिंग्स वर लाइक दैट एट दैट टाइम ऑल्सो. वो इस चीज को गलत नहीं मानते थे. उनको ये लगता था कि उनके पास उनकी कम्युनिटी को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए, उनको अच्छे से लाइफ लीड करने के लिए दे नीड मोर मनी, एंड दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड दीज रेट्स. Okay, so that they can have more money for their community which he has established. Okay beta. Any other questions? Oh, ma'am. Okay. Now we'll see ki the caliphate expansion, civil wars and the sect formation. Prophet Muhammad died in 1632, right? And when he died, है ना, तो जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरा सक्सेसर ये होगा. Nothing was there like this, or as well as what was the way of succession, ऐसी भी कोई चीज उन्होंने लोगों को क्लियर नहीं करी. ओके. तो आफ्टर मोहम्मद्स डेथ इन 1632, no one could legitimately claim to be the next prophet of the Islam. Okay. As a result, his political authority was transferred to the Ummah, the whole community का जो मेन लोग थे, with no established principles of succession. Okay बेटा. This created opportunities for the innovations. अब लोग बाग सोचने लगे कि क्या करा जाए. Right children? क्योंकि कोई चीज पहले से ऐसी डिसाइडेड नहीं थी कि who will be the next prophet after the Muhammad and how he will be elected or he will be appointed. Something like that was not clear to anyone. Or Ummah was their community, so naturally the things came or the authority came into the hands of the Ummah community, right? And this created opportunities for the innovation.
but also caused deep divisions among the Muslims. ठीक है, अब लोग बाग सब अपने अपने नए नए आइडियाज लेकर के आने लगे कि इस तरीके से हमें नेक्स्ट जो प्रॉफिट है या नेक्स्ट सक्सेसर है उसको इलेक्ट कर लेना चाहिए. ओके, अब जब डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं तो व्हाट हैपेंस चिल्ड्रन, देयर इज ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. ठीक है, देयर इज ए कन्फ्लिक्ट. इफ मोर देन टू व्यूज आर देयर, तो यू कैन से देयर इज ए कन्फ्लिक्ट अमंग देम, राइट? And the biggest innovation was the creation of the institution of caliphate. तो ये जो उम्मा कम्युनिटी मेजॉरिटी के साथ ये कहती है कि हमें यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट इस्टेब्लिश करना चाहिए, इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, और उसको आमिर अल मुमिनिन कहा जाएगा, बिकेम द डेप्यूटी ऑफ द प्रॉफिट, और उसको खलीफा, कैलिफेट था ये तो इसको खलीफा कहा गया, राइट? अब ये खलीफा भी कौन बनेगा? तो क्या हुआ कि द फर्स्ट 4 कैलिफ्स जस्टिफाइड देयर पावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट. जो उनके बहुत ज्यादा क्लोज लोग थे, ठीक है, जिनके पास पावर्स थी, ठीक है, जिनका उनसे बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन था, जिन लोगों के पास पावर थी, दे वर कंसीडर्ड एज द नेक्स्ट 4 कैलिफेट्स. ठीक है, जिनको जो माना जाता था कि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से मिल करके रह रहे थे, उनसे बहुत क्लोज थे, और जिनको बहुत की जो जनरल पीपल को प्रॉफिट के बारे, मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में चीज़ें पता थी, उनसे ज़्यादा दीज थिंग्स आर नोन टू देम. ठीक है, तो उन सबको आपके आगे वाले 4 खलीफाज बनाया. And about these 4 Khalifas we will study tomorrow. And one thing more children, on Monday the timetable will change. Now you will be having, instead of 3 classes, 4 classes a week. Okay, that will be shared with you as soon as we'll get the final timetable, right children? Okay, now I would like to take the oral test, okay, of this लेसन थीम 3 का मैं ओरल टेस्ट लेना लूंगी ऑन मंडे. हाँ बेटा, यस चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम इन द थीम 3? ले No, लूं बेटा ma'am. टेस्ट? ठीक है, तो Yes, इसमें ma'am. से देखिए, पहले तो मैंने जो टेस्ट लिया था, बिकॉज यू आर हैविंग द एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो खाली ऑब्जेक्टिव्स का लिया था, राइट? दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक द टेस्ट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एज वेल एज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स. ओके, ठीक है, एंड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, क्योंकि जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होंगे, आई विल आस्क देम टू कम ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. ठीक है, and be on time children. You will know the new timetable later on. This is Okay, all ma'am. for today children. Okay, have a nice day, have a blessed day, and stay safe. Bye children. Thanks, sir. Bye, ma'am.